Gujarat's administration reopened the Shiva temple in Sambhal, which was closed for 46 years. Chief Minister Yogi has taken a dig at the previous UPA government. He said, why have those criminals not been punished till date who committed genocide in Sambhal 46 years ago? Why is this not discussed when it comes to the crimes of the previous regime? Is the pitch coming in from Yogi Adityanath? Let's listen in. याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। So it seems Sambhal has become that latest flashpoint when it comes to the politics in Uttar Pradesh, and Yogi Adityanath trying to expand on his Ek Hai To Safe Hai pitch. Remember, it paid dividends for the BJP when it comes to the recent round of elections, and when it comes to the situation in Sambhal, given the communal violence which took place after the court-ordered survey, Yogi Adityanath hammering the point that denying rights to Hindus to pray in Sambhal is something that previous regimes are responsible for. I'm joined by my colleague Arun Dhanta on the broadcast. So Arun, when it comes to Sambhal, Yogi Adityanath once again making the Hindutva pitch. Well, that's right, and we all know what Supreme Court has done in this regard. SC barred civil courts across the country from registering any fresh suit challenging the ownership and the title of any places of worship order. So therefore, Yogi Adityanath, while saying this, was in fact highlighting this point that look, 46 years ago in 1978, during that riot which happened in Sambhal, this temple was closed. And in fact, he also said that this temple is 400, 500 years old. And we have nobody placed that Hanuman Murti there or the Shivling which they found there. Essentially, Yogi Adityanath wanted to send out a message, even for, of course, the other mosques where people are claiming that there was no temple. And on the other side, Yogi Adityanath or the BJP have been maintaining this fact that there was a temple there at the place of mosque. And Sambhal, of course, we all know about the Jama Masjid, the entire issue which was raked up by the petitioner is that there was old temple at the place of Jama Masjid in Sambhal, which was destroyed by Tughlaq, and therefore there needs to be a restoration of temple. So Yogi Adityanath highlighting this point once again, that the opposition parties which were in power in Uttar Pradesh at that point in time when that riot happened and the temple was closed, why there was no action was taken against those people. And in fact, many Hindus were left that place at that point in time. Why there was no action from the successive opposition governments on those people? Yeah, and Arun, when it comes to the situation that Yogi Adityanath is alluding to, when it comes to the Shiva temple in Sambhal, give us some context. In what circumstances was this temple closed that Yogi Adityanath has made it a communal talking point in Uttar Pradesh now? Well, as per the local administration they are saying that there was a riot which happened in that area in Sambhal in 1978, and post that riot, the temple was closed, and the Hindus which were residing in that area, they also, of course, left the place due to the riots, and that temple was closed. So that opened that temple is opened by the administration there a few days back in Sambhal, which has, of course, caught the eye of everybody. And in fact, when that temple was opened, it was found that there was Hanumanji's Murti, and a Shivling was also found there. So there was
cleaning of the temple which happened there, and people started offering their prayers there. In fact, in that entire area, this become a huge, talk of the town, that how this temple was closed for 46 years, why there was no action from the administration side, why was there no effort was taken by the administration to open it. So now the temple is open, and Yogi Adityanath is highlighting that point, that look, this temple was closed for 46 years, and there were people who in fact let this happen, and now this temple has been opened, and the murti has been found. So essentially the message is that if you go for a survey or anything of the mosque in which many Hindus are claiming temple, you will find perhaps murtis and other signs related to Sanatan Dharma. Absolutely. Thank you, Arun, for getting us the latest that attack coming in from Yogi Adityanath. Let's listen into more reactions coming in from Ground Zero. मंदिर जो है 1978 से इसके कपाट बंद थे। अच्छा। और 46 साल बाद इसके कपाट खोले गए। हाँ। तो इस प्रकार से यह है, जब कपाट खोले गए हैं तो उसी प्रकार से आरती नित्य, पूजा अर्चन नित्य की जाएगी। इसमें 1978 में जिस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा असामाजिक कार्य हुआ था आपने, तो इस वजह से यहाँ के जो हिंदू थे वो धीरे धीरे, अल्पसंख्यक थे हिंदू, तो धीरे धीरे अपने पलायन करने लगे थे, जिस वजह से मंदिर में ताला पड़ गया था। कल प्रशासन ने जो कार्रवाई करी उससे हमें पता चला कि यहाँ पर एक 46 साल से बंद पड़ा हिंदू मंदिर भी है। तो हमें जानकारी हुई तो हम यहाँ पे आए, प्रशासन ने सहयोग करा, पूरे जो अतिक्रमण था वो सारा अतिक्रमण हटाया, और मंदिर को खुलवाया, सफाई करवाई, पूजा अर्चना स्टार्ट करा दी गई। नहीं, मंदिर था, यहाँ धर्मशाला थी और काफ़ी लोग यहाँ रहते थे, 40 लोग रहते थे। एक धर्मशाला थी पीछे की तरफ को, और वो लोग यहाँ रहते थे। अब सब लोग यहाँ से जा चुके थे, तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। पुलिस प्रशासन की मदद मिलेगी तो यहाँ पर आएंगे, वैसे तो आने की हिम्मत नहीं है। ठीक है। हाँ। संभल के खग्गू सराय में जहां मंदिर मिला, वहां आसपास किस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले एक बार तस्वीर देखिए, ये वो मंदिर का स्ट्रक्चर है कल जिसका पता चला, और यहां आसपास आप देखिए कि घर किस तरह से बने हुए हैं। एक घर ऐसा है कि जिसकी दीवार और मंदिर की जो दीवार है वो बिल्कुल लगी हुई है। पुलिस प्रशासन ये तय करेगा कि क्या यहाँ पर कोई अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल एक जो घर है और जो मंदिर की दीवार है वो बिल्कुल एक दूसरे से टच है। और देखिए ये दूसरा जो मंदिर के ठीक बाहर ये पास में एक जगह है जहां पर कुएं को खोजा गया है। दरअसल यहां पर इस घर के मुख्य दरवाजे से एक प्लेटफॉर्म यहां पर बना हुआ था, ये उसके नीचे ये कुआं था, और इसी प्लेटफॉर्म को तोड़ा गया है जिसके बाद इस कुएं का पता चला है। आप देखिए यहाँ पर कल यहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना था ताकि इस घर के अंदर आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के अंदर, इसी रैंप के अंदर ये कुआं है, तो ये यहाँ पर मंदिर के बाहर कुएं का पता चला है। तो ऐसे में अभी और चीज़ें तय की जानी बाकी हैं कि आखिर इस मंदिर की जगह कितनी थी, इसके आसपास और क्या स्ट्रक्चर थे, ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा है और एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। मंदिर के स्ट्रक्चर के बाहर की जो दीवारें थी वो तोड़ी गई थी। तो ये तमाम अभी पुलिस और प्रशासन जो है वो इस बात को देख रहा है कि आखिर इस मंदिर के आसपास किस तरह से स्ट्रक्चर है, क्या कोई अवैध निर्माण इस मंदिर के आसपास किया गया है, ये भी अभी जांच किया जाना बाकी है। संभल में आज रविवार को बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। हमारी मौजूदगी संभल के हिंदू खेड़ा इलाके में है। आप यहां पर देखेंगे बुलडोजर से जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, उसका मलबा यहां पर आपको दिखाई देगा। आपको बता दें कि 24 फरवरी को संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के एक्शन कर रही है। आप तस्वीर देखिए, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। इससे पहले जो अवैध बिजली कनेक्शन थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। फिलहाल हिंदूपुरा खेड़ा की ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो अवैध अतिक्रमण है वो यहाँ से हटाया गया है। दरअसल ये वो अवैध अतिक्रमण है जो घरों के सामने जो प्लेटफॉर्म होते हैं,
जो सीढ़ियां बनी होती हैं उनको हटाया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, ये सीढ़ी है घर में दाखिल होने के लिए, उसको हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो अलग अलग तरह की कार्रवाई लगातार अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है, यहाँ पर भी बुलडोज़र का एक्शन दिखाई दे रहा है। संभल हिंसा के बाद क्या ये उसका असर है या ये रूटीन कार्रवाई है, इसके बारे में तो प्रशासन बताएगा। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये नज़र आ रही है, जो संभल हिंसा है उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरे संभल में अलग अलग इलाकों में ये एक्शन दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई और पथराव हुआ पुलिस के ऊपर। वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन कई मौत उस हिंसा में सामने भी आई और अब यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खग्गूसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था। भगवान शंकर का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से। यहाँ आए नहीं क्योंकि आने की यहाँ पुजारी नहीं रहता था। यहाँ पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। यहाँ आबादी सब आस पास में है। मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे कितने साल से बताइए? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। क्षेत्र में भ्रमण किया गया तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया। निकट भी एक कुआं है जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, उसके बारे में भी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। अगर अतिक्रमण हुआ है और सामने से दिख भी रहा है तो वह सब कार्रवाई की जद में है।